I welcome to all the students of class 10th in my next video, which is related to chapter 6 triangles. As you all know that, my dear students, already we have completed exercise 6.2. Today I will start the exercise 6.3, which is related to similarity. There are three types of similarity. Now just come on theorem 6.1. This statement you will write down in your notebook also. The statement is that if in two triangle corresponding angles are equal, if two triangles are given, one triangle is ABC and another triangle is PQR. My dear student, if corresponding angles are equal, if angle A equals to angle B, if angle B is equals to angle Q and angle C equals to angle R. Again listen, in these two triangles, if angle A equals to angle P, angle B is equals to angle Q and angle C equals to angle R, then we can say that these two triangles are similar by angle similarity. First similarity, angle similarity. By angle similarity, we can say that these two triangles are similar to each other. One thing is also, listen, which is written on the page number 132. If two angles of one triangle are respectively equals to two angles of the another triangle, then two triangles are similar. अगर इन दो triangles के what is angle similarity, my dear students? इन दो triangles में if angle A equals to angle P and angle B equals to angle Q, then by angle similarity say we can say that this triangle is similar to this triangle. We are observing that if one angle is equal to this one, another angle is equal to this one, then obviously third angle is also equal to this one. But no need to prove this one. Only by angle similarity say we can say that this triangle is similar to this triangle. It is clear to everybody? Now come on theorem 6.4. The theorem 6.4 says that if in two triangles, sides of one triangle are proportional, that is in the same ratio, the sides of the other triangle, then corresponding angles are equal and two triangles are similar. Means now again second similarity, side similarity. What is side similarity? क्या होती है side similarity? If sides of one triangle are corresponding proportional to the another triangle, मतलब अगर the name of this point is A, if AB upon PQ is equal to BC upon QR equals to AC upon PR, हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो हैं विद ट्रायंगल PQR, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड ट्रायंगल्स आर सिमिलर. तब ट्रायंगल्स क्या होंगे? ABC सिमिलर होगा ट्रायंगल PQR के और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे. दिस इज साइड सिमिलैरिटी. नाउ कम ऑन द थ्योरम 6.5. The theorem 6.5 says if one angle of a triangle is equal to one angle of the other triangle, एक ट्रायंगल का जो वन एंगल है, हम थर्ड कंडीशन बाय साइड सिमिलैरिटी क्या होती है? इफ एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, अगर एंगल A B के इक्वल है, if one angle of a triangle is equal to the one angle to the other triangle and sides included these angles, इन एंगल्स के इंक्लूडेड साइड है जो AB और AC है और इधर PQ और PR है, ये सेम रेशो में हो जाएं,
तो साइड एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर होंगे। ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। मींस इफ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल पी एंड ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, जो इक्वल एंगल है उनके जो इंक्लूडेड साइड है, इंक्लूडेड साइड ए बी और ए सी हुई, और एंगल पी के इंक्लूडेड साइड पी क्यू और पी आर हुई, ये आपस में सेम रेशो में होनी चाहिए। यानी कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर, एंड इंक्लूडेड एंगल कौन सा है, एंगल ए एंड एंगल पी इक्वल होने चाहिए। तब हम कह सकते हैं कि एस ए एस से बोथ ट्रायंगल्स आर similar. This is the similarity which is based on exercise 6.3. Now I am going to start the exercise 6.3. Exercise 6.3. The first question is that स्टेट विच पेयर ऑफ ट्रायंगल्स इन द फिगर्स आर सिमिलर। ये पता करना है कि कौन से ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। राइट द सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज बाय यू बाय आंसरिंग द क्वेश्चन। सिमिलैरिटी क्राइटेरियन यूज कर लिखना है कि कौन किस एस ए एस से, एंगल 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 से या एस 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 से ट्रायंगल सिमिलर हुए हैं। एंड राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इन सिंबॉलिक फॉर्म, और सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखना है। तो हमारा जो फर्स्ट डायग्राम है माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि एंगल ए पी के इक्वल है, एंगल बी क्यू के इक्वल है, और एंगल सी आर के इक्वल है। इन ट्रायंगल क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में, इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड अनदर ट्रायंगल है पी क्यू आर में हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एंगल ए इक्वल एंगल पी 60 डिग्री है, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू 80 डिग्री गिवन है, एंगल सी इक्वल्स टू एंगल आर 40 डिग्री गिवन है। सो बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के। ये फर्स्ट पार्ट था आपका। सेकेंड पार्ट, रीड द सेकेंड पार्ट। पार्ट नंबर सेकेंड इज दैट स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर में सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में ए बी अपॉन पी क्यू, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन आर पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू। सबका रेशो 1/2 आ रहा है। ए बी को क्यू आर से डिवाइड कर लीजिए, बी सी को आर पी से डिवाइड कर लीजिए, और सी ए को पी क्यू से डिवाइड कर लीजिए। सबका रेशो क्या आ रहा है, 1/2 आ रहा है। बट सो जब रेशो इक्वल आ रहा है तो क्या कह सकते हैं, बाई साइड 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 से ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल क्यू आर पी के। माय डियर स्टूडेंट, अगेन लिसन फ्रॉम द डायग्राम। देखिए जरा फिगर में ए बी अपॉन क्यू आर को देखिए, ए बी अपॉन क्यू आर 2 का डबल 4 लिखा है। जब 2 को 4 से डिवाइड करेंगे 1/2 आएगा। बी सी को डिवाइड करिए पी आर से, 2.5 को 5 से डिवाइड करेंगे फिर 1/2 आएगा। और ए सी को डिवाइड करिए पी क्यू से, 3 को जब डिवाइड करेंगे 6 से तो भी 1/2 आएगा। तो क्या हो रहा है यहां पर, साइडें सेम रेशो में है दो ट्रायंगल्स की। तो जब साइडें सेम रेशो में होंगी तो एस 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 से हम क्या कह सकते हैं, ट्रायंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे। ओके, सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट, अदर्स पार्ट यू कैन सॉल्व, अनदर पार्ट्स यू कैन सॉल्व सिमिलरली। सारे पार्ट ऐसे ही कर सकते हैं। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 2।
The question number 2, a diagram is given. This is point D, C, A, B. This is O. This angle is 125 degree and this is 75 degree. It is given that triangle solution of question number 2, triangles ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के, ये गिवन है. फाइंड क्या करना है? एंगल DOC. DOC फर्स्ट एंगल फाइंड करना है, एंगल 1. DCO एंगल 2. OAB एंगल 3. ये हमें फाइंड करने हैं. तो फ्रॉम दिस डायग्राम, फ्रॉम फिगर, my dear student, BD is a line, so angle 1 plus 125 makes a straight line. दोनों का सम क्या बना रहे हैं? एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं. दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा. एंगल 1 प्लस के 125 इक्वल टू 180 बाई लीनियर पेयर प्रॉपर्टी से. बाई लीनियर पेयर से 125 राइट साइड जाके माइनस कर दीजिए. 180 माइनस के 125 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 55 डिग्री. क्या आ गया? 55 डिग्री. ये एंगल 55 आ गया. इस ट्रायंगल DOC में वी कैन अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी. इन ट्रायंगल DOC में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 75 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल 1 अभी कैलकुलेट किया है 55 प्लस 2 प्लस 75 इक्वल्स टू 180. ऐड कर दीजिए दोनों को. वन 130 इक्वल्स टू 180 प्लस एंगल 2. फाइनली एंगल 2 की वैल्यू क्या आ गई है? 180 माइनस के 130. This is 70. This is not 75, my dear student. This is a 70 degree. This angle is equals to 70 degree. This is a 70. So that this, the sum of these two angle is equal to 125. उधर जाके माइनस कर दीजिए 125 को. तो क्या आ जाएगा? ये भी आपका 55. एंगल 2 भी क्या आ गया? 55. ऑल्सो ट्रायंगल ODC सिमिलर है OBA के. इट इज ऑल्सो गिवन कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है? सिमिलर है. जब ये ट्रायंगल इसके सिमिलर है तो एंगल 2, 3 के इक्वल हो जाएगा. एंगल DCO इक्वल हो जाएगा OAB के, यानी एंगल 2 किसके इक्वल हो जाएगा? 3 के. ऑल्सो ट्रायंगल ODC सिमिलर है ट्रायंगल OBA के. दिस इंप्लाइज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 इज इक्वल्स टू, ये भी क्या हो जाएगा? 55 डिग्री. तो हैंस क्या क्या वैल्यूज आ गई हैं? एंगल एंगल DOC आपका क्या आ गया? 55 डिग्री. एंगल OCD 55 डिग्री. एंगल OAB भी 55 डिग्री. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ये क्वेश्चन 2 का सॉल्यूशन था. नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 3. द क्वेश्चन नंबर 3 इज दैट diagonals AC and BD of a trapezium ABCD. Diagonal AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel DC intersect each other at point O. Diagonal AC और BD trapezium ABCD के intersect कर रहे हैं O पॉइंट पर. देख लीजिए प्लीज द क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन 3. एक ट्रेपीजियम है ABCD. AB पैरेलल DC के है और डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर. प्रूव दैट, शो दैट
OA अपॉन OC क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ OA अपॉन OC इक्वल्स टू OB अपॉन OD, ये प्रूफ करना है हमको. तो वी आर ऑब्जर्विंग दैट OA, OB, OC एंड OD दे पार्ट द पार्ट ऑफ दीज टू ट्रायंगल्स. तो फर्स्टली वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर. सो इन ट्रायंगल OAB and triangle OCD. First, my dear student, angle 1 equals to angle 2, angle 3 equals to angle 4, angle 2 equals to angle 1, angle 3 equals to angle 4, and angle AOB equals to angle COD, vertically opposite angles, and they are alternate interior angle से. By एंगल साइड से ट्रायंगल OAB is similar to triangle OCD. They both triangles are similar. When they are similar, then their corresponding sides are in same ratio. Yes, same ratio में रख दीजिए. That is OA upon OC equals to first or last, OB first to last, OT. This is the verification of question number 3rd. This question, my dear student, already we have proved in previous exercise also. It was, but during that time we have solved this question by Thales theorem, converse of Thales theorem से. और अब हमने इसको किससे किया है? by similarity criterion से. ओके, ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 3. Now the question number 4. A diagram is given. In this diagram, what is the diagram? एक ट्रायंगल है TQR. Two points P and S on side QT and QR. P and S. Such that angle 1 equals to angle 2. इसको ज्वाइन कर रखा है इन्होंने और इसको भी ज्वाइन किया हुआ है. दिस इज एंगल 2 एंड दिस इज एंगल 1. प्रूफ करना है क्या? क्या प्रूफ करना है? टू प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS सिमिलर है ट्रायंगल TQR के और एंगल 1 2 के इक्वल गिवन है. Proof as angle 1 equals to angle 2 in triangle PQR में. PQR ट्रायंगल में एंगल 1 2 के इक्वल गिवन है. एंगल 1 का अपोजिट साइड PR, एंगल 2 के अपोजिट साइड PQ. सो PR is equals to PQ. This is the equation number 1. Side opposite to equal angle by from class 9 से. Also QR upon QS equals to QT upon PR. It is also given. What is given? QR upon QS is equals to QT upon PR. But in place of PR we can write here PQ. तो QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR. PR की जगह क्या लिख सकते हैं हम? PQ लिख सकते हैं. किस इक्वेशन से? बाय इक्वेशन 1 से. नाउ ऑब्जर्व ट्रायंगल. नाउ इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, एंगल PQS equals to angle TQR, common angles and QR upon QS equal to QT upon PQ. So by side angle side से ट्रायंगल PQS सिमिलर होगा TQR के. माय डियर स्टूडेंट्स, साइड्स तो सेम रेशियो में है. मींस कहाँ है साइड सेम रेशियो में? QR अपॉन QS. QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन QP.
और एंगल 1 दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो साइड एंगल साइड से बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। ये सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 4 का। सिमिलरली 5 यू विल सॉल्व माय डियर स्टूडेंट्स। 5 आप कर लेंगे अपने आप। क्वेश्चन नंबर 5, now come on the question number 6. क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, एक डायग्राम गिवन है आपको। एक ट्रायंगल है ABC, एक लाइन है DE, DC और EB, दे बोथ आर ज्वाइंट टू ईच अदर। ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल ACD के, और प्रूव करना है ट्रायंगल ADE सिमिलर है ABC के। छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर है बड़े ट्रायंगल के। एज क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ADE सिमिलर है ABC के। प्रूफ एज ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है किस ट्रायंगल के, ACD के। ये AEB ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ADE के। जब कॉन्ग्रेंट है तो AD तो AE के इक्वल होगा CPCT से, और AB AC के इक्वल होगा CPCT से। सो व्हाट वी कैन राइट, AB तो AC के इक्वल होगा और AE किसके इक्वल होगा, AD के होगा। नाउ दोनों किससे होंगे, CPCT से। दोनों को डिवाइड कर दीजिए माय स्टूडेंट्स। ऑन डिवाइडिंग, this is the equation number 1, this is 2. On dividing 2 by 1, so AE upon AB is equal to AD upon AC. समझ लीजिए यहां पर AE upon, there is an interchange here. Actually AE के नीचे क्या आ गया, AB आ गया, तो इनको इंटरचेंज कर दीजिए। AD इक्वल टू AE लिखिए, आप करिए डिवाइड। AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन, फ्रॉम दिस डायग्राम AD अपॉन AB, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC, एंड एंगल A इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल। विच ट्रायंगल्स, ADE एंड ABC में। एंड नाउ अब रूल लगाइए, इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC में, फर्स्ट AD अपॉन AB इक्वल्स टू AE अपॉन AC। अभी प्रूफ किया हमने ये कि AD अपॉन AB AE अपॉन AC के इक्वल है, एंगल A एंड एंगल A इक्वल्स टू एंगल A। दिस इज द कॉमन एंगल्स ऑफ बोथ द ट्रायंगल्स। बाय साइड एंगल साइड से वी कैन से दैट व्हाट, ट्रायंगल ADE इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये सॉल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 6 का। इज दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल। लुक आफ्टर द क्वेश्चन नंबर 7। एक डायग्राम गिवन है, AD एंड CE ऑफ ए ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट P। शो करना है these 4 results. All 4 results you will prove. If you are having the doubt, I will explain this question. You can ask this question. Now question number 8, I am going to start. Question number 8. Question 8. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD.
एक पैरेललोग्राम है ABCD, ABCD एक पैरेललोग्राम है. E is a point on side AD produced of a parallelogram ABCD. ABCD पैरेललोग्राम की साइड को जो प्रोड्यूस किया तो उस पर पॉइंट है एक कौन सा? E. BE, this line segment BC, BE intersect CD at point F. BE CD को F पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है. What we have to prove? प्रूफ करना है हमें ट्रायंगल ABE सिमिलर है ट्रायंगल CFB के. दोनों ट्रायंगल्स को देखिए कौन कौन सा? ABC, ABE प्रूफ करना है ABE ट्रायंगल, ये पूरा ट्रायंगल. CFB इसके सिमिलर है. ये ट्रायंगल इस बड़े ट्रायंगल के सिमिलर है, ये प्रूफ करना है. देखिए प्रूफ. इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CFB इन दोनों ट्रायंगल में फर्स्ट वन थिंग, this angle is equals to this angle. Angle 1 equals to angle 2, alternate interior angle. Actually this line is parallel to this line. ये लाइन इसके पैरेलल और इसको प्रोड्यूस किया गया है और ये एक ट्रांसवर्सल लाइन हो गई है. सो एंगल 2 1 के इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से. और अनदर वन, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं. एंगल A इक्वल्स टू एंगल C. opposite angles of parallelogram. So by angle similarity से ट्रायंगल ABE सिमिलर होगा ट्रायंगल CFB के. This is the verification of question number 8. Up to this question students you will solve in your fair copy. Thank you.